Good morning, dear students. We were discussing the concept agriculture. In this concept, we discuss about the 5 different concepts that is related to the agriculture. Today, we are just going to recapitulate this chapter because this chapter consume our almost 1 month time. So that's why we have to once again recalling this chapter. So my dear student, as you are aware, in this chapter, we have discussed about the 5 concepts. The very first is type of farming that consists of the primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, and the commercial farming. Next concept that we discuss in this chapter is the cropping pattern that constitute of the 3 types of the crops, that is the Rabi crop, Kharif crop, and the Zaid crop. Except this, the third concept that we discuss in this chapter about the major crop. In this chapter, we discuss about the food crop other than the grains, and the non-food crops. So these 3 types of the crop we have discussed in this chapter. Fourth concept that we discuss in this chapter is the technological and institutional reforms. And except this, food security has been cut from your chapter, and instead of it there is the Bhudan Gramdan that we have discussed in this chapter. And the fifth concept that we discuss in this chapter is impact of globalization on agriculture. So these are the 5 concepts that we have discussed in this chapter. So my dear student, when you are going to prepare about any concept, not in the particular in geography, in any subject, First of all, you have to just draw a mind map in your mind, or you can just formulate the pattern of that chapter. So if you have a look on the content of this chapter, you will find that I have just first of all frame the all the concept of this chapter, like the type of farming we will discuss, cropping pattern we will discuss, major crop we will discuss, different informs we will discuss, and the globalization impact on agriculture we discuss. So this is just the brain map that we have to develop first of all. So when we discuss about this concept, so there are a number of questions that emerge in your mind. So first of all, what you have to do, you have to do just frame out all the concepts, and you have to make a strategy that how to learn the different concept of a particular chapter. For example, here are the types of the farming. When you go in the content of the types of the farming, you will come to know that the very first concept we discuss about the primitive subsistence farming. So first of all, you have to came to know what do you mean by the primitive subsistence farming. As I told you, this is also known as the zooming farming. It is also known as the shifting cultivation. So my dear student, if question asked in any form, for example, a question asked to you that what is shifting cultivation, what are the disadvantages of shifting cultivation? Or if I ask you what are the characteristics, what are the features of primitive subsistence farming? Or what is zooming farming, what are the demerit of the zooming farming? So answer will be same beta. So you have to, first of all, what you have to do, you have to just learn the characteristics of the primitive subsistence farming. If you learn the characteristics of the primitive subsistence farming, so what you have to do, you have to just give the answer of every question. So what are the characteristics of the primitive subsistence farming? The characteristics are, it is just practice in the few pockets of India, means only in the some parts of the India. Very first characteristic is this. Second characteristic is that it just practice on the small patches of land. Second characteristic, small patches of the land with the help of primitive tools, और हमारे जो primitive tools हैं उनकी सहायता से आपकी की जाती है. So this is our second characteristic. Third characteristic is that this type of the crop is the
फैमिली और कम्युनिटी लेबर ओरिएंटेड, यानी कि इसमें एक ही फैमिली या एक ही कम्युनिटी के व्यक्ति जो है काम करते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज दिस दैट farmers are still depend on the monsoon, natural fertility of soil. And fifth characteristic is that such types of the crop, such types of the primitive farming just depend on the suitability of the environmental conditions. Means totally we are depend on the environmentally condition on this. So if you have a just refined shape of this, it is also known as the zooming farming. So in the zooming farming, you have to, most of the points occur related to the primitive subsistence farming. A little bit difference is that in this type of the farming, the farmer, they just clear a patch of land after cutting the forest or the burn the forest. So यहाँ पे भी आप एक ही चीज देखेंगे कि farmers क्या करता है, it is also known as slash and burn agriculture. A patch of land is cleared and cereal and other food crops are produced. तो यहाँ पे भी आप लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं और यहाँ पे भी आप इस चीज के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो ये क्रॉप है, ये आपकी टोटली जो है आपकी जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन से ही ऑलमोस्ट आपकी रिलेटेड होती है। दूसरी बात इसमें क्या है बेटा कि जब सोइल फर्टिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है, उस टाइम हम क्या करते हैं, वी जस्ट अबैंडन दैट लैंड, हम उस लैंड को छोड़ देते हैं और हम दूसरी लैंड पर जाकर खेती करते हैं। जैसे कि इसमें आपका बताया था कि आपका जो है मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी पर फार्मर जो है वो डिपेंड होते हैं, दे डिपेंड ऑन द मॉनसून एंड द नेचुरल फर्टिलिटी। यहाँ पे भी यही बात कही गई है कि आपकी जो है लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो एज द फार्मर डोंट यूज फर्टिलाइजर और अदर मॉडर्न इनपुट्स, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है वो रिफाइंड कर दी गई है। तो ऑलमोस्ट ये दोनों जो है एक दूसरे से आपके मिलते जुलते हैं। तो अगर आपसे पूछे व्हाट आर द फीचर ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, go through this. If anybody asks you that what is the shifting cultivation, what are the disadvantages of that, you have to go with this concept, okay? And you can also add the feature of primitive subsistence farming in the zooming cultivation or shifting cultivation. Next concept is the different names of the zooming cultivation और shifting cultivation. यहाँ से आपका rarely 1 mark का क्वेश्चन आता है, so you have to learn the different names. वो आपको धीरे धीरे लर्न करने पड़ेंगे, एकदम से याद नहीं होंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन आज हमने किया है बेटा, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसके बाद आपका आता है बेटा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आपका जो है बिल्कुल अलग चीज आ जाएगी, ये यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। ऐसे ही आपका थर्ड आपका आता है कॉमर्शियल फार्मिंग। यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न द फीचर ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एज वेल एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉमर्शियल फार्मिंग। व्हेन यू लर्न द बोथ ऑफ द फीचर ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग, तब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग, कि आपका जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या क्या डिफरेंस है। जब आपको इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छी तरीके से लर्न होगी तो आप जो है इसको जो है इजीली जो है कर सकते हैं बेटा। तो यू नो वेरी वेल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज फीचर। तो सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द कॉमर्शियल फार्मिंग। तो यहाँ पे तीनों टाइप की जो फार्मिंग आपकी, उनकी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करनी होगी। उसके बाद आपके आते हैं बेटा क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न एज यू आर अवेयर वी हैव द 3 क्रॉपिंग पैटर्न, रबी क्रॉप्स। सो यू हैव टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रबी क्रॉप, जैसे कि शोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स यू हैव टू नो वेरी वेल अबाउट दीज। सो कहाँ पे ग्रो की जाती है, आई टोल्ड यू अबाउट दिस। किस चीज से ज्यादा सक्सेस रही है, ग्रीन रेवोल्यूशन से। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द रबी क्रॉप।
After that you have to do the kharif crop. So you have to also learn the characteristics of the kharif crop. When you understand the characteristics of the rabi crop and the kharif crop, then once again and next question lies here, what is the difference between rabi crop and kharif crop? So if you know the features of these, you can give the answer about this. After that, there is the Zayad crop. In the Zayad crop, you have to also learn the characteristics of the Zayad crop. And here, one question right here, write a short note on Zayad crop. So you can give the example of the Zayad crop when it grows. So you know very well, my dear student, that it grows between the Rabi and the Kharif crop season. These are the short season crops, and they take 2 to 3 month टू मैच्योर, यानी कि ये जो है 2 से 3 महीने में आपकी पककर तैयार हो जाती हैं. सो इन दी जायद क्रॉप मोस्टली अवर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर एंड दी वेजिटेबल एंड फोडर क्रॉप्स ये आपकी आती हैं. एक्सेप्ट दिस सुगर केन इज ऑल्सो shown during the Jayad crop season, so it is also a Jayad crop, but it take almost 1 year to mature. लेकिन ये जो है आपका मैच्योर होने में तकरीबन जो है 1 साल का समय लेता है. दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द जायद क्रॉप. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अवर मेजर क्रॉप. सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज आपने देना है बेटा, दैट इज द मेजर क्रॉप. सो इन द मेजर क्रॉप, एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द क्रॉप. The very first is the food crop, second is our food crop other than grains, and third is our non-food crop. So my dear student, you have to learn certain point in your mind. First of all, which types of crop is this? For example, this is the rabi crop or the kharif crop. इस चीज का आपने ध्यान रखना है. और चलो अगर आप इसको भी छोड़ देते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि ये किस प्रकार की क्रॉप है. यानी कि जैसे बाय द वे राइस को कहता हूँ, तो विच टाइप्स ऑफ राइस क्रॉप इज. वैसे तो आपकी जो है खरीफ क्रॉप है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी प्लांटेशन क्रॉप भी है. तो इस तरह से आपको जो है टाइप को ध्यान में रखना होगा कि किस टाइप की आपकी क्रॉप है. साथ ही साथ आपको जो है कई चीजों का ध्यान रखना होगा. हर एक क्रॉप का आपने टेम्परेचर जरूर देना है, दूसरा रेनफॉल जरूर बतानी है, और तीसरा सोइल. ये 3 पॉइंट तो आपने बताने ही बताने हैं बेटा. सोइल, temperature and rainfall you have to give in every type of the crop this description. तो जब आप इसको करोगे बेटा, तो आप जो इंडिया का जो मैप है उसको माइंड में रखोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में आ जाएगा कि किस एरिया में किस तरीके का टेम्परेचर होता है और किस तरीके की आपकी रेनफॉल होती है. तो आपको इस पे ज्यादा लेबर करने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली आपको लर्न हो जाएगा. और जब इंडिया का मैप आप अपने सामने रखोगे, तो माय डियर स्टूडेंट, यू ऑल्सो नो अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोइल इन द डिफरेंट region of India. So you can give the answer very easily about this. After that 3 points तो आपके ये हो गए बेटा. एक पॉइंट हो गया आपका टाइप का कि प्लांटेशन क्रॉप है या शोन की जाती है या रेटून क्रॉप है या रेटिंग क्रॉप है, किस तरह की क्रॉप है. अगर ये याद नहीं रहता है तो रबी क्रॉप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं. उसके बाद 5वां पॉइंट आपका आता है इंपॉर्टेंट रीजन्स, कि कौन कौन से रीजन्स में ये आपकी ग्रो होती है. और अगर आपने थोड़ी सी डीप स्टडी की है बेटा, तो कई क्रॉप के आपके डेटाज दिए हुए हैं कि इंडिया जो है एक पर्टिकुलर क्रॉप में इस स्थान पर आती है. जैसे कि राइस कल्टीवेशन में कौन सा स्थान है, टी कल्टीवेशन में कौन सा स्थान है, फ्रूट्स में कौन सा स्थान है, वेजिटेबल में कितना स्थान है, लाइक दिस. तो यू हैव टू लर्न द डिफरेंट मेजर क्रॉप्स इन दिस चैप्टर. तो ज्यादा क्रॉप्स आपकी नहीं है. आपकी क्रॉप है कितनी? सबसे पहले तो आपकी मेजर क्रॉप में फूड क्रॉप, जिसमें आपका आता है राइस, व्हीट, मिलेट्स, maize and pulses. You have to learn about these. Rice, wheat, millets. Millets में 3 आती है बेटा, ज्वार, बाजरा and रागी. After that maize used as food and fodder and pulses. तो pulses आपका ये आपकी होगी फूड क्रॉप. उसके बाद फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स, उसमें आपका आता है शुगर केन, ऑयल सीड, टी, कॉफी और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. और उसके बाद नॉन फूड क्रॉप में आपका रबर, और फाइबर क्रॉप में 2 बेटा आपकी कॉटन एंड दी जूट. सो यू हैव टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट. तो इनको लर्न करने का बेस्ट तरीका, अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं कि राइस यहाँ पे होती है, इस तरीके से होती है,
तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाए। तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है बेटा, हैव ए लुक हियर। ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो क्रॉप्स हैं इनके जो है डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। So I think you retain all the points in your mind. You have to just put 1 hour on this chapter, so you can easily learn this chapter. Nothing is impossible in this chapter. It's very easy chapter. Now, my dear student, you watch the about the different types of the crops here. तो यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा? You have to make a table. As I prepare a table for you, so I just distinguish the different points of the different crop. For example, type of crop, which types of particular crop is, then India's rank in the world, then soil type preferred, which types of the soil is required for this type of crop, then temperature, how much temperature a particular crop require, then annual rainfall required, and the major region where this grown. So you have to prepare a table. When you prepare a table, your hand and mind coordination goes up together simultaneously. So you just came to know that which types of crop is this, how much temperature it required, where it grown. तो आप वर्ल्ड इंडिया के मैप को ध्यान में रखते हुए जब आप करोगे तो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट आपका नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू माय डियर स्टूडेंट अबाउट द राइस, किस तरह की क्रॉप है बेटा? स्टेपल फूड क्रॉप है, यानी कि मेजर फूड क्रॉप आपकी। प्लेस इन द वर्ल्ड सेकंड प्लेस आफ्टर चाइना। Which types of soil require? It's require the alluvial soil. अगर आप alluvial soil भी लिखोगे तो भी ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है, if you write the clay और clay loamy soil, so that is also good. Means यानी कि जो आपकी ये alluvial soil है, इसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए, गुड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये पानी में उगाया जाता है बेटा आपका। टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली अबव दी 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। कहाँ पे होती है बेटा? प्लेन ऑफ नॉर्थ, यानी कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। नॉर्थ ईस्टर्न में आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल के रीजन यहाँ पे आपका होता है। कोस्टल, जहाँ पे आपके डेल्टाज आपके बनते हैं, उन रीजन में आपका होता है। तो यू हैव टू कीप दीज थिंग इन योर माइंड। वीट कैसी क्रॉप है बेटा? मेजर फूड क्रॉप है, स्टेपल फूड क्रॉप है, नेसेसिटी है। हमारे जो नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, ज्यादातर लोग जो है वीट को यूज करते हैं आपके, जबकि आपके साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो आपके राइस को यूज करते हैं। फोर्थ स्थान है बेटा हमारा। कैसी सोइल चाहिए? फर्टाइल सोइल चाहिए, हैवी टेक्सचर सोइल होनी चाहिए विद लाइम, क्ले, लोमी और ब्लैक सोइल। इन प्रकार की सोइल में आपका ग्रो होता है। वट द टेम्परेचर रिक्वायर्ड? 10 to 15 डिग्री ड्यूरिंग द ग्रोथ, यानी कि ये आपका जो है नवंबर दिसंबर में आपका शोन होता है, तो 10 to 15 डिग्री टेम्परेचर जो है वो इसको चाहिए होता है। और राइपनिंग के टाइम पे इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, तो इसलिए जो है 25 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका होना चाहिए। रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर। एज आई टोल्ड यू, वीट के लिए आपका वेस्टर्न साइक्लोन से जो आपकी रेनफॉल होती है, जो विंटर रेनफॉल आपकी होती है, वो इनके लिए एक ब्लेस होती है। तो ये पॉइंट कभी भी नहीं भूलना है बेटा आपने। कहाँ पे होगा बेटा? गंगा सुतलज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सोइल रीजन ऑफ दक्कन, इनमें होता है। तो इनमें कौन कौन से स्टेट आते हैं आपके? पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। ऐसे बेटा मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, अलग अलग के लिए अलग अलग सोइल है। जैसे ज्वार के लिए ब्लैक सोइल में भी होती है और आपका एलुवियल सोइल में भी होती है। टेम्परेचर आपका 26 डिग्री टू 33 डिग्री। और अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा तीनों में, तो आपने सीधा सिंपल सा लिख देना है अबोव 25 डिग्री सेल्सियस, आपका काम ही खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा? बाजरा के लिए आपकी सैंडी सोइल और रागी के लिए आपका सैंडी रेड, ब्लैक और सेलो ब्लैक सोइल।
ये आपकी चाहिए होती है। टेम्परेचर आपकी रेनफॉल बहुत कम चाहिए होती है, लेस देन 100 सेंटीमीटर। अगर आप सभी का भूल जाते हो तो इन तीनों में अगर आप लिख देते हो लेस देन 100 सेंटीमीटर या अप्रोक्सीमेटली 75 सेंटीमीटर या मोर देन 50 सेंटीमीटर, तो तीनों पॉइंट आपके ठीक माने जाएंगे बेटा। कहाँ कहाँ पे होती है बेटा? दीज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट्स। नेक्स्ट इज अवर मेज। किस तरह की क्रॉप है बेटा? फूड एंड फोडर। कहाँ पे होती है आपकी? ओल्ड एलुवियल सोइल में ज्यादातर ग्रो की जाती है। टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल चाहिए बेटा 15 टू 75 सेंटीमीटर। और कहाँ पे होती है? सबसे ज्यादा कर्नाटका, आफ्टर दैट मध्य प्रदेश, देन यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। उसके बाद बेटा आपका जो है पल्सीज। पल्सीज आपकी जो है लेगुमिनस क्रॉप है, यानी कि फलीदार पौधा है बेटा। फलियों से आपकी जो है यहाँ पे जो आपके फ्रूट्स आते हैं, यानी कि फलियों से इसकी जो क्रॉप जो है ग्रोन की जाती है। इंडिया का कौन सा स्थान है बेटा? फर्स्ट प्लेस है आपका। कौन सी सोइल में होती है आपकी? ड्राई एंड लाइट सोइल में आपकी होती है। टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री। रेनफॉल 50 टू 75 सेंटीमीटर। एंड मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटका। आफ्टर दैट शुगर केन। किस तरह की क्रॉप है बेटा? रैटून। मैंने बताया था आपको, स्टेम को कट किया जाता है, ब्रीड इन द ग्राउंड एंड आफ्टर दैट द प्लांट स्प्राउट फ्रॉम दैट। सो रैटून क्रॉपिंग है। वी आर ऑन द सेकंड प्लेस आफ्टर ब्राजील। ड्रेन्ड सोइल में, यानी कि जहाँ पे नदियां ज्यादातर बहती हैं, एलुवियल सोइल भी आप लिख सकते हो, उनमें ज्यादातर आपकी ग्रोन की जाती है। आपका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली आपका जो आपका जो शुगर केन है, इसको टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल चाहिए बेटा 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। और लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं बेटा आपके यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लाइक दिस। So these are the important states. आफ्टर दैट बेटा ऑयल सीड्स। ऑयल सीड इंडिया में कौन से होते हैं बेटा? एडिबल एंड रो यूज एज मटेरियल, यानी कि आपके जो है खाने वाले जो तेल हैं वो आपके इंडिया में ज्यादातर आपके जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके साथ साथ इनका जो प्रयोग है एज ए रो मटेरियल भी आपका यूज किया जाता है। हमारा जो है ऑयल सीड में थर्ड पोजीशन है बेटा 2015 के अकॉर्डिंग, आफ्टर कनाडा एंड चाइना। सोइल टाइप प्रिपेयर की जाती है बेटा सैंडी सोइल एंड द ब्लैक सोइल। और इसमें जो है ये जो सैंडी सोइल और ब्लैक सोइल है बेटा, ये ग्राउंड नट के लिए, आपकी मूंगफली के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। टेम्परेचर अलग अलग आपके ऑयल सीड होते हैं बेटा, अलग अलग आपके जो है टेम्परेचर उनके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसा कि अलग अलग आपके वो होते हैं ऑयल सीड्स होते हैं, तो अलग अलग टाइप से जो है इनके लिए रेनफॉल भी अलग अलग रिक्वायर्ड होती है। तो ग्राउंड नट आपका गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, अदर ऑयल सीड्स इन मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। यानी कि ग्राउंड नट आपका गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में होता है। और इसके अतिरिक्त दूसरे जो आपके ऑयल सीड है, जैसे सेसमी है आपका, मस्टर्ड है आपका, या सनफ्लावर आपका, और ये इन अलग अलग स्टेट्स में आपके होते हैं। नेक्स्ट इज अवर टी। प्लांटेशन टाइप ऑफ क्रॉप है, सेकंड प्लेस इन अकॉर्डिंग टू 2015 डेटा आफ्टर चाइना। डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोइल चाहिए होती है, यानी कि इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए बेटा। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। 10 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता इसको होती है। अबाउट 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी कि फ्रीक्वेंटली शावर इसको चाहिए होते हैं, अगर आपको याद आया हो तो। सबसे ज्यादा आपकी होती है असम, देन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में भी आपकी टी कल्टीवेशन होती है। नेक्स्ट इज अवर कॉफी। कॉफी जो है बेटा आपकी प्लांटेशन क्रॉप है। वेल ड्रेन सोइल में आपकी होती है, दैट इज रिच इन दी ह्यूमस। 23 टू 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका चाहिए, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादातर ग्रोन की जाती है आपकी। 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल आपकी चाहिए। और इंडिया में आपकी इट इज जस्ट कन्फाइंड टू नीलगिरी हिल्स, जिसमें आपके स्टेट्स आते हैं कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इन्हीं में आपकी कॉफी कल्टीवेशन की जाती है। देन रबड़। रबड़ आपकी एक प्लांटेशन क्रॉप है, जैसे कि मैंने आपको बताया था
कि एक बार अगर रबड़ का पौधा तैयार हो जाए तो उससे तकरीबन 80 ईयर तक आपकी प्रोडक्शन जो है ली जा सकती है। फोर्थ स्थान है हमारा बेटा अकॉर्डिंग टू 2011 डेटास आफ्टर थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड दी चाइना। वेल ड्रेन, लेटराइट और लोमी सॉइल में आपका ग्रोन किया जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल भी सबसे ज्यादा इसी को चाहिए होती है बेटा। टी के लिए भी मोर देन 200 सेंटीमीटर और इसके लिए भी मोर देन 200 सेंटीमीटर। केरला में सबसे ज्यादा आपकी रबड़ होती है बेटा। आफ्टर दैट तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। यानी कि मेन तो क्रॉप आपकी ट्रॉपिकल बेटा, जैसे कि आपने देखा होगा केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार सारे ट्रॉपिकल एरिया में आपके रीजन्स आते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपके सब ट्रॉपिकल एरिया हैं, जैसे कि आपका गारो हिल्स ऑफ दी मेघालय, वहां पे भी आपकी अगर रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाए, जो इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, अगर एडिक्वेट कंडीशन मिल जाए तो वहां पे भी ये जो है आपकी ग्रो की जा सकती है। नेक्स्ट इज अवर कॉटन, फाइबर क्रॉप है बेटा। सेकंड प्लेस है इंडिया का। ब्लैक सॉइल में होती है। 35 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए होता है और 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। इसके लिए विशेष ध्यान रखना है 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। रेनफॉल आपकी 85 टू 100 सेंटीमीटर आपकी रेनफॉल चाहिए होती है, या अगर आप लिखोगे अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर तो भी आपका राइट होगा। लीडिंग प्रोड्यूसर, ब्लैक सॉइल जहाँ पे होती है वहीं पे लीडिंग प्रोड्यूसर होंगे, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के अतिरिक्त ये आपकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी में भी होती है। एंड लास्ट आपका जूट, आपकी फाइबर क्रॉप है, ऑल्सो नोन एज दी रेटिंग क्रॉप, क्योंकि इसके लिए क्या किया जाता है कि आपका इसका जो है फाइबर लेने के लिए, आपका जो है इसका रॉ मटेरियल लेने के लिए वी हैव टू ब्रीड दी जूट क्रॉप अंडर दी वाटर। तो इसको जो है पानी की बहुत ज्यादा आपकी आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसको रेटिंग क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में होनी चाहिए और यही रीजन है कि वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा आपकी होती है। हाई टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 150 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल और लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है बेटा आपका वेस्ट बंगाल, बिहार। उसके बाद आपका होता है बेटा असम, उड़ीसा एंड मेघालय। So in this point of view, you have to learn the different geographical condition of the different crop. If you develop such types of the table, you can easily learn this. इसके बाद आपका आता है बेटा, we have just 10 minutes बेटा, जल्दी हम करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में सबसे पहले तो हमने कोजिस को देखना है कि कोजिस कौन कौन से कोजिस हमारे थे। उसके लिए हमको जो है ब्रिटिश टाइम पीरियड में भी जाना पड़ेगा बेटा। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई किस तरह की क्रॉप जो है हमारे इंडिया में आपकी जो है हो रही थी और हमको उसमें सुधार क्यों करने पड़े। तो उसमें जो है बेटा कई चीज मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले तो ये है कि बेटा हमारी जो पेस है वो स्लो डाउन है, यानी कि टेक्नो इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स हमको चाहिए ही चाहिए होते हैं अगर हमको वेल मैच करने हैं, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी एक एग्रीकल्चरलिस्ट कंट्री होने के नाते वो आपकी नहीं हुई है। दूसरा, आपका जो इरिगेशन है, आज भी जो किसान है वो मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल पे डिपेंड करते हैं। तीसरा, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चौथा, आपके जो करंट प्राइसेस जो हैं वो किसानों को आज भी जस्टिस नहीं देते हैं, यानी कि किसान जो अपनी क्रॉप्स को का जस्टिफिकेशन मूल्य प्राप्त नहीं करते हैं। और इंडिया में जो है आपकी बहुत सी डिजास्टर आती है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको जो है डिफरेंट रिफॉर्म की जरूरत हुई। इसके अतिरिक्त और भी कई चैलेंजेस हैं बेटा आपके जो हमको जो आज के टाइम में महसूस हो रहे हैं। उनमें आपके आते हैं बेटा, एक तो हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग है उसका जो साइज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके बाद जो है आपके जो ज्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो रहे हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्ट की पुअर फैसिलिटीज है बेटा और पुअर स्टोरेज फैसिलिटी है, यानी कि किसान अपनी प्रोडक्शन को जो है सेफ नहीं रख पाता है इन दी कंपैरिजन ऑफ दी अदर कंट्रीज। ऐसे ही
आज भी बेशक से टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित हो गई हो, लेकिन हमारे किसानों के पास जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे ही किसानों के पास जो है प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी आज भी नहीं है इफ वी डू कंपैरिजन विद दी अदर कंट्रीज। और हमारी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे आपकी कम हो रही है, क्योंकि किसानों को जो है खेती के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। वो अपनी सॉइल का हेल्थ कार्ड जो है वो नहीं बनवाते हैं, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं उनको चेक नहीं कराते हैं, अपनी मर्जी से ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते रहते हैं। ऐसे ही आपका जो है मार्केटिंग सपोर्ट भी जो है किसानों को जो है प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो ये बहुत से चैलेंजेस थे बेटा। इन चैलेंजेस को देखते हुए हमारी जो सरकार है उसने कई जो है टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बनाए हैं जो आपके ब्रिटिश टाइम से भी आपके रिलेटेड हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कलेक्टिव फार्मिंग इंट्रोड्यूस की गई, लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट किया गया, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स आपके चलाए गए, जमींदारी सिस्टम आपका अबोलिश किया गया जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के थ्रू आपका आया था। ऐसे ही आपके डिफरेंट लैंड फॉर्म जो है 5 ईयर जो आपके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उनमें इंक्लूड किया गया, और ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन और ब्लू रेवोल्यूशन इनको जो है आपका एग्रीकल्चर फील्ड में जो है इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने जो है कंप्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट फीचर्स प्रोग्राम भी बनाए हैं, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका आता है कि आपकी जो क्रॉप्स है उनका इंश्योरेंस किया गया कि जैसे देश में जो है आपका कहीं पे ड्रोट आ जाता है, कहीं पे फ्लड हो जाती है, कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गई, साइक्लोन आ गई, तो जिससे फसल खराब हो जाती है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपका जो है क्रॉप इंश्योरेंस सरकार ने जो है आपका इंट्रोड्यूस कराया है। दूसरा, आपके अलग अलग जो है कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बैंक जो है वो आपके इस्टेब्लिश कराए हैं, ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश कराए हैं ताकि किसानों को जो है कम इंटरेस्ट पर जो लोन मिल सके। इसके अतिरिक्त जो हमारे शेड्यूल बैंक है उनमें जो है किसानों का केसीसी बनता है, किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, जिसको ग्रीन कार्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें किसानों को जो है कम इंटरेस्ट पे जो है लोन दिया जाता है ताकि वो अपनी इनपुट जितनी भी उनकी खेती में आ सकती है उस लोन से वो जो है अपनी खेती को कर सकें, और जो हमारे जो एजेंट्स हैं या मिडल मैन हैं उनसे जो है वो उनके ट्रैप में ना आए। ऐसे ही पेस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आपकी लॉन्च की गई है कि अगर किसी भी किसान को, किसी भी मजदूर को खेत में कार्य करते हुए कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उसके कंपेंसेशन के लिए सरकार जो है कुछ ना कुछ धनराशि जो है उनके परिवारजनों को देती है। ऐसे ही स्पेशल वेदर बुलेटिन्स आपके बनाए गए, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स आपके चलाए गए जो रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारित आपके ब्रॉडकास्ट आपके होते हैं। ऐसे ही एमएसपी आपका जो है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया ताकि जो लोग हैं वो आपके स्पेकुलेटर्स और मिडल मैन के एक्सप्लॉयटेशन से बच सके। तो ये तो है बेटा आपके इंपॉर्टेंट क्रॉप, ये बेस है बेटा आपके। इसके अतिरिक्त जो आपके करंट बनाए गए हैं आपको सारे करंट लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त मेन आपने इनमें एक तो आपने जो है अलग अलग थोड़े थोड़े जो है आपने इसमें ऐड करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यू कैन ऐड द पॉइंट ऑफ द सोइल हेल्थ कार्ड को आप इसमें जो है इसमें जो है आप लर्न कर सकते हैं, यानी कि ये आपको एक सपोर्ट देगा बेटा, यानी कि आपका क्वेश्चन आंसर जो है वो दी बेस्ट माना जाएगा। ऐसे ही आपने अगर आपके फादर जो है किसान है तो आपने देखा होगा कि वो आजकल जो आपका खरीफ क्रॉप के लिए यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर, तो उसमें जो है नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग वो कर रहे हैं जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोग्राम। तो आप एसएससी और एनसीयू इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये स्कीम आपकी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी एट प्रेजेंट आपकी काम कर रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपकी चलाई गई है, जिसमें पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम जो है आपकी आती है। इसके अतिरिक्त बेटा आपका जो है वन नेशन वन मार्केट, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बेटा एक और थी आपकी फसल बीमा योजना, आपका था बेटा दिस वन राष्ट्रीय गोकुल मिशन, यू कैन लर्न दिस पॉइंट। एक्सेप्ट दिस यू कैन ऑल्सो लर्न हर खेत को पानी सिंचाई योजना के तहत। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा आपका इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट। ये आपके जो अलग अलग जो क्रॉप मैनेजमेंट्स हैं उसमें आपका जो है आईएनएम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, आपका इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ये आपके सारे आईसीएम के तहत आते हैं। तो कम से कम 5 पॉइंट आपने यहाँ से लर्न करने हैं, आपका आंसर दी बेस्ट हो जाएगा बेटा।
इसके अतिरिक्त बेटा भूदान ग्रामदान के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जो भूदान और ग्रामदान है बेटा, उसमें जो है आपने जो है दो ही क्वेश्चन आपके बनते हैं कि व्हाट इज भूदान या व्हाट इज ब्लडलेस रेवोल्यूशन, एक ही क्वेश्चन आपका बनता है, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर फैक्ट्स एंड फिगर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये करंट का नॉलेज है बेटा सारा। तो ये स्लाइड आपने लर्न करनी ही करनी है, क्योंकि ये कई जगह काम आएगी बेटा आपकी। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो आपका ये काम आएगा बेटा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये आपका काम आएगा। व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो ये आपका काम आएगा बेटा। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये आपका काम आएगा। तो ये पॉइंट्स आपके कई जगह काम आते हैं। तो एग्रीकल्चर जो 18% जो करंट डाटा के अकॉर्डिंग आपकी जीडीपी को ग्रोथ कर रही है, और 2017-18 के अकॉर्डिंग जो हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो तकरीबन जो है 275 मिलियन टन हैं। इसके अतिरिक्त पल्सीज जो है हमारा, जो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, नंबर 1 पे हैं, तो 25% जो है ग्लोबल जो प्रोडक्शन है पल्सीज की इंडिया करता है। उसके अतिरिक्त मिल्क प्रोडक्शन हमारी जो है 165 मीट्रिक टन आपकी जो है। इसके अतिरिक्त हम जो है मिल्क, जूट और पल्सीज इसमें को भी जो है लार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्रोड्यूस करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो स्थान है फ्रूट्स और वेजिटेबल में वो सेकंड स्थान है। और इसके अतिरिक्त जो हमारी अदर क्रॉप्स हैं लाइक वीट, ग्राउंडनट, कॉटन, शुगर केन, उसमें भी हमारी अच्छी खासी उपलब्धि है। और शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर अगर हम देखें टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री, यानी कि हम जो दूसरे देशों में बेचते हैं, वो 11.76% था बेटा, जो बहुत अच्छा हमारा ग्रोथ रेट था। तो दिस इज द फैक्ट एंड फिगर। ऐसे मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, सिग्निफिकेंस। तो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है बेटा, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, आपकी जीडीपी को ग्रोथ करता है, और आपकी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेटिक चेंज को कंट्रोल करता है। ये भी आप जो है सिग्निफिकेंस और फैक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं बेटा। सो ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है बेटा, 8 पॉइंट आपके दिए गए हैं। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन कॉलोनियल पीरियड में आपका स्टार्ट हुआ, यू कैन गिव दैट। आफ्टर दैट कौन कौन सी क्रॉप्स इंपॉर्टेंट थी, यू कैन गिव दैट। आफ्टर दैट जीन रेवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, यू मस्ट गिव दिस आंसर। तो ये 8 पॉइंट आपकी बुक में दिए गए हैं बेटा, एटलीस्ट यू हैव टू लर्न 5 अमंग दैट। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर। आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। So God bless you beta, and thank you. Have a nice day. Stay healthy, stay safe. If you have still any confusion, you can raise question beta through the WhatsApp group beta. Okay beta, thank you.